الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ محترم حضرات، ہم 15 اگست کی مناسبت سے ایک گفتگو کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اس کی آج ہم پارٹی کے صاحب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کریں گے کہ اس کو 20 تاریخ سے پہلے 19 تک ختم کیا جائے۔ بات یہاں تک ہوئی تھی کہ 1857 جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا، اصل میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کو انقلاب کہتے ہیں، جب ناکام ہو جاتی ہے تو غدر کہلاتی ہے۔ ملک جیت جاتا ہے تو فریڈم فائٹر کہلاتا ہے، ملک نہیں جیتتا ہے تو آتنکوادی کہلاتا ہے۔ یہ ساری ڈیفینیشنز ہوتی ہیں۔ بہرحال تو جب وہ 1857 کے بعد انگریزوں نے دلی پر قبضہ کر لیا تو کرنے کے بعد انہوں نے 1 سال تک لگاتار جو ہے وہ پکڑ دھکڑ پھانسی، جن لوگوں کو توپ کے ذریعے انہوں نے اڑایا ہے اس کی ایک پرانی تصویر موجود ہے۔ ایک ساتھ 7 یا 8 توپیں لگائی گئی ہیں اور اس میں جو ایک عالم ہے جن کی عمر 80 سال ہے، ان کے دونوں ہاتھوں کو ایسے باندھ دیا گیا ہے توپ کے پیچھے، اور منہ جو ہے نا توپ کا یہاں پیٹھ پہ رکھ دیا گیا ہے اور اڑا دیا گیا ہے۔ ایک ساتھ کمانڈر ایک ہے جو کمانڈ کیا اور ساری توپوں کو ایک ساتھ اڑا دیا ہے۔ یہ جب حالات اس طریقے سے ہوئے اور دلی پر قبضہ ہو گیا تو بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ یہاں تک بات ہوئی تھی کہ بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کو انہوں نے قتل کر کے، اور ناشتہ جب انہوں نے مانگا تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کے دونوں بیٹوں کو سینی میں ناشتہ رکھ کر کے پیش کیا، اور اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون برما میں جو ہے لے جا کر کے قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر نے اس پر ایک شعر کہا تھا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین مل نہ سکی کوئے یار میں، یعنی جس کا پورا ملک تھا وہ اپنے ملک میں 2 گز زمین بھی قبر کی نہیں پا سکا۔ یہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے یہ شعر کہا تھا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اب یہ جو ہمارے علماء دیوبند جو تخت دیوبند تھا، یہ ہمارے جو علماء حق تھے، تو انہوں نے الگ الگ استدی قائم کی کہ کیا کیا جائے۔ اب تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جو اس کے کمانڈر تھے، آپ کو بتایا تھا، تو ان کے بارے میں رائے یہ ہوئی کہ آپ کو اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ پھانسی کے علاوہ کوئی نیچے سزا نہیں دیں گے۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشورہ یہ طے پایا کہ آپ جو ہے وہ ہجرت کر جائے۔ تو مولانا جو ہے وہ کسی طرح دیوبند سے نکلے اور وہ تھانہ بھون سے نکلے، اور نکلتے ہوئے علی گڑھ چھپتے چھپاتے 1.5 سال تک اسی طریقے سے زندگی رہی اور مکے چلے گئے۔ دوسرا جو بڑا ان کے لیے خطرہ تھا وہ رحمۃ اللہ کیروانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امداد اللہ مہاجر مکی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ حادثہ ہو گیا تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے رئیس کے گھر میں چھپے ہوئے تھے، تو اس کے گھر میں جو گھوڑے باندھنے کا استبل تھا، جہاں گھوڑا باندھا جاتا تھا، اسی میں ایک کونے میں اپنا چھوٹا سا اس نے بنا دیا تھا، رہتے تھے۔ کسی مخبر کا جب بھی وہ تھا مسلمان ہی، کسی مخبر نے مخبری کی کہ امداد اللہ مہاجر مکی جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ کم سے کم 25 FIR ان کے خلاف تھے، مختلف دفعات لگائی گئی تھی، تو اس نے مخبری کی کہ یہ فلاں امیر کے گھر میں اور استبل میں چھپے ہوئے۔ جب پولیس آئی ان کے پاس تو جیسے کسی آتنکوادی کو پکڑا جاتا ہے، بڑی زبردست فورس آئی، تو اس نے امیر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں امداد اللہ مہاجر مکی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں چیک کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے اس کی حویلی پوری چیک کی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں آپ کا استبل چیک کرنا چاہتا ہوں۔ جب انہوں نے استبل چیک کرنے کی بات کی تو یہ بیچارے کے جو جس نے رئیس نے رکھا تھا، اس کے پیسے زمین پر رکھ گئی۔ اس کو یہ ہوا کہ پکڑا جانے کا مطلب پھانسی کی سزا ہی دی جائے گی۔ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا، امداد المہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے ہاتھ اٹھایا کہ پروردگار عالم آپ ہی مدد کرنے والے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی پتہ نہیں لا سکتا ہے، آپ ہماری مدد فرمائیے۔ پوری فوج داخل ہو گئی
اندازہ یہ ہے کہ 70 سے 80 آدمی تفتیش کے لیے گھسے اور امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ وہیں استبل کے کونے میں بیٹھے تھے، کسی کو نظر نہیں آئے. اور ایسے واقعات رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ایسے واقعات قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئے، کیونکہ جب تک وکٹوریا نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا، امداداللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تو مکے چلے گئے، لیکن مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ صرف 3 دن چھپے رہے انڈر گراؤنڈ ہے. لوگوں نے موت سمجھا ہے کہ اگر آپ کو ہی پکڑیں گے تو پھانسی کی سزا ہے. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی نا تو 3 ہی دن چھپے تھے، لہٰذا 3 ہی دن سنت ہے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. ایسے یہ ایمان کی باتیں ہوتی تھی نا کہ عرش الہی تک پہنچتی تھی. امداد اللہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو دارالعلوم دیوبند کے گیٹ پر پولیس نے آ کر کے روکا. یہ بہت ہی مطلب ایک سادہ زندگی گزارتے تھے، کرتا چھوٹا اور کیا کہتے ہیں اس کے اوپر لنگی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی جو ہے نا وہ کام کرنے والا ہے. پوری زندگی ایسے ہی انہوں نے گزاری. تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم نے قاسم نانوتوی کو دیکھا ہے؟ اسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا، پیچھے اشارہ کر کے کہا کہ ابھی 1 سیکنڈ پہلے ادھر ہی تھا. اس کے بعد وہ آگے چل گئے. اب وہ بہت پریشان کہ وہ تلاش کرنے لگا. پھر اس نے پوچھا کہ آپ قاسم نانوتوی کو جانتے ہیں؟ کہا تم سے بتایا ابھی یہیں سے تھوڑی دیر پہلے. ایسے 3 مرتبہ وہ اشارہ کرتا رہا اور وہ انگریز کے سر سے بات گزرتی رہی اور حضرت ستہ کی مسجد میں داخل ہو گئے اور جا کر مسجد میں اپنی نماز پڑھتے رہے، اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا. اللہ نے کبھی بھی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ارسٹ ہی نہیں کر پائی اور 3 دن ہی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہے. بلکہ 1 دن نہیں رہے، بہت لوگوں نے ان کو سمجھایا، انہوں نے کہا سنت کے خلاف ہے. یہ وہ ذات گرامی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دانت سے پکڑ کر چلنے والی ہے. کون؟ قاسم نانوتوی. اس کی ذات میں اتنا خلوص تھا کہ جس نے دارالعلوم دیوبند قائم کیا اور دنیا کی جو ہے آج بھی سب سے بڑی یونیورسٹی، مسلم یونیورسٹی جو نان کوآپریٹو گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ کے کوآپریٹ سے چلنے والی یونیورسٹیاں ہو سکتا ہے اس سے بڑی ہوں، لیکن صرف چندے پر اور لوگوں کے جو ہے وہ تعاون سے اتنی بڑی یونیورسٹی دنیا میں کوئی نہیں چل رہی ہے. وہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ خلوص تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بھی ارسٹ نہیں ہو پائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا رہا. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ارسٹ ہو گئے اور 9 مہینے تک جیل میں رہے. یہ وہ لوگ تھے جن کی ڈیوٹیاں لوگ اٹھانا فخر سمجھتے تھے اور جیل میں ان کو زبردست قسم کی جو ہے وہ سزا دی. اور سب سے یہ بات کہی جاتی تھی کہ آپ صرف یہ کہہ دیں کہ انگریز کی حکومت جائز ہے. انہوں نے کہا ایسا زندگی میں نہیں ہو سکتا. آپ جان لے لیں، جو چاہے کر لیں، یہ جملہ ہم اپنی ہوش میں نہیں کہہ سکتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہم لوگ صرف، چونکہ ہم تو بزدل قسم کے لوگ ہیں، ہم لوگوں نے نہ ایسے کبھی آدمی دیکھے ہیں نہ کبھی ہم ایسے آدمی ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمارے لیے افسانہ ہیں، کہانیاں ہیں. اور مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیبیٹر ہے. یہ آج آپ کو ذاکر نائک صاحب جو نظر آتے ہیں، کبھی زندگی تو ذاکر نائک کی کہانی آپ کو بتائیں گے. ذاکر نائک بنے کیسے، یا ابھی پچھلے 120 سال کے اندر جو ذاکر نائک جس کے شاگرد ہیں احمد دیدات کیسے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈیبیٹر بنے. احمد دیدات ایک دکان سے، پرچون کی دکان سے کام کرتے تھے. تو احمد دیدات جہاں رہتے تھے وہاں پر ایک کیسے تھا، افریقہ کی بات ہے یہ. تو وہ وہاں افریقہ کے جو فادر لوگ تھے اور ان کے نیچے یہ ان کو بہت ستاتے تھے، ان کو کوئی معلومات اسلام کی نہیں تھی. یہ بیچارے گھر سے نکلتے نہیں تھے، جب نکلے وہ مل جائیں تو ان سے اسلام کے بارے میں سوال. یہ دکان والے نے ایک دن سے کہا کہ یار کافی دن ہو گئے دکان صاف نہیں ہے، ذرا دکان صاف کر دو. تو اس نے دکان جب صاف کیا نا تو کچرے میں ایک کتاب ملی انگلش میں. وہ انہوں نے سوچا کیونکہ کوئی کچھ جانتے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا، کچھ نے کہا چلو بعد میں رکھ لیتے، گھر میں جا کے پڑھیں گے. وہ اتفاق سے کتاب مولانا رحمۃ اللہ کیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جس میں انگریزوں کے سارے کوشچن کے جواب دیے ہوئے تھے جو کلکتہ سے لے کر ڈیبیٹر سہارنپور تک آیا تھا، ان سب کے سوالات کے جواب اس کتاب میں موجود تھے، جس کا نام اظہار حق تھا.
वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुई थी। अब जब हजरत ने आकर के अहमद दीदाद ने खोला तो देखा यार ये जितने सवालात करते हैं ये सब इसमें लिखे हैं। एक हफ्ता बंदा परेशान था, एक हफ्ते तक उस किताब को चाट डाला अहमद दीदाद ने। और उसके बाद जब निकले, वो जब आए बात करने, उन्होंने कहा भाई क्या पूछूं। अब जब अहमद दीदाद ने उनको जवाब देना शुरू किया तो नीचे वाले तो दरकिनार, फादर भी बहस करने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का वो कौन बना, डिबेटर बना अहमद दीदाद। अहमद दीदाद की शागिर्दी अख्तियार की डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने, और जितने जवाबात डॉक्टर जाकिर नाइक साहब स्पिरिचुअलिटी को देखते हैं वो सब मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहमतुल्लाह के जवाब हैं, और आज भी वो किताब मौजूद है। ये वो शख्स था, ये भी बेचारे जो है मजबूर हो गए और इन्होंने भी हिजरत की और मक्के चले गए, और मक्के में एक मदरसा कायम किया, क्योंकि ये वो लोग थे जो एक्टिव लोग थे। ऐसा नहीं था कि चलो मामला खराब हो गए कि चलो आराम किया जाए। आराम नाम की कोई चीज नहीं थी, जिंदगी मुस्तार थी, और एक एक लम्हा चूस लेना है और दीन के लिए लगा देना है। आज भी मदरसा सहूलतिया मक्का मुहर्रमा में जो बैतुल्लाह है उससे एकदम मेरा अंदाजा 100 गज के फासले पर वो मदरसा आज भी बरकरार है। ये मौलाना रहमतुल्लाह किरानी रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर के उस मदरसे को कायम किया। फिर इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह भी उसमें जाकर के रहने लगे। जब यहाँ से गए इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह कोई जानता ही नहीं, और उनकी हालत खुद खराब। अल्लाह से दुआ की कि परवरदिगार आलम, न मेरे पास खाने के लिए कोई पैसे हैं और न मैं भीख मांगूंगा चाहे मर जाऊं तेरे घर में। तो कुछ दिन तक आबे दमदम से गुजारा होता रहा। एक आदमी आया, इनसे मुलाकात किया, देखा कि एक हजरत हैं, बैठे रहते हैं, न कहीं उठते हैं न जाते हैं, पेशाब गए चले आए, पखाना गए, कहाँ खाते हैं? तो उसने कहा हजरत खाते क्या हैं? कहा पीते हैं, खाते नहीं है। और जमजम के बारे में ये तहकीक है कि अगर कोई आदमी जमजम का पानी पीता रहे तो जितने आपको मिनरल्स इन द बॉडी चाहिए वो सारे मिनरल, सारी ग़िज़ाइयत उसके अंदर मौजूद है। उसने कहा कि हजरत मैं, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 दाना खाना आपके लिए लाऊंगा। और इन्होंने जब दुआ की ना तो कहा कि रब्बे जुल जलाल, मूसा अलैहिस्सलाम भी जब मदियन पहुंचे थे तो इन्होंने यही दुआ की थी कि रब्बे जुल जलाल, मैं एक नया आदमी हूँ और आप मेरे लिए इंतजाम फरमा दिए। मैं भी अल्लाह वही मूसा की तरह दुआ कर रहा हूँ, खाने का इंतजाम हो गया। फिर कुछ दिन के बाद कालना जैसे खाने का इंतजाम किया, ऐसे रहने का भी इंतजाम कर दिया। कुछ दिन के बाद की बात है कि साहब आए, उन्होंने कहा कि मेरा घर है, मैं आपको वक्फ करना चाहता हूँ। और वो मदरसे सहूलतिया से लगी हुई जगह थी, तो उसने क्या किया कि वो अपने घर को हजरत के नाम वक्फ कर दिया, और हजरत ने अपनी जिंदगी के बाद उसको मदरसे सहूलतिया में दे दिया। महाराज इस तरीके से ये सारे लोग तितर बितर हो गए। लेकिन रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह और कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह जो है वो हिंदुस्तान में रहे। अब इन्होंने ये सोचा कि मामले को कैसे किया जाए, बात बढ़ाई कैसे जाए। ये एक बात तो तय हो चुकी थी, ये बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, इससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, गौर से सुनिएगा ये, वरना ये ऊपर से जाएगी जो कहने जा रहा हूं। जब किसी मुल्क में डिक्टेटरशिप को अगर आप ब्रैकेट में करें या ब्रैकेट से खोलें, जो मैच में किया जाता है, तो इसमें 2 चीजें आती हैं, बादशाहत और कबायली निजाम। अगर बादशाहत और कबायली निजाम करप्ट होता है तो जमहूरी अंदाज में कभी भी उसकी इस्लाह मुमकिन नहीं है। ये मेरी अपनी स्टडी है, आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। फिर से समझ लें, अगर डिक्टेटरशिप में करप्शन आया, चाहे बादशाहत हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे कबायली निजाम हो, तो कभी भी आप जमहूरी अंदाज में काम करके उनको करेक्ट नहीं कर सकते। वहां पर मसले का हल पावर है। जब तक पावर नहीं इस्तेमाल किया जाएगा मसला हल नहीं होगा। यहाँ पे जो हिंदुस्तान में हमारे उलमा ने पावर का इस्तेमाल किया, अपनी जानों को निछावर किया, ये वही फलसफा था। तो पूरे हिंदुस्तान का 99% यही बात समझता था कि अंग्रेजों को भगाने का तरीका जो है वो क्या है, जाने देनी पड़ेंगी तभी ये मुल्क को खाली करेंगे, क्योंकि इनको सोने की चिड़िया देख करके आने के बाद इस मुल्क से निकलने के लिए इनका दिल नहीं है। लिहाजा वो जमहूरी अंदाज में टेबल टॉक करके मामला नहीं बनेगा। यही नजरिया हमारे तमाम उलमाए कराम का था, यही नजरिया भगत सिंह का रहा, यही नजरिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा, यही नजरिया मंगल पांडे का रहा, यही नजरिया सुभाष चंद्र बोस का रहा। सारे के नजरिए यही थे कि बगावत की मसले का हल है।
یہ بات سمجھے، اس لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. دوسری کیفیت ہوتی ہے ڈیموکریسی. اگر ڈیموکریسی کرپٹ ہوتی ہے، جمہوریت میں شرارت ہوتی ہے، تو جمہوریت کا حل جمہوری انداز سے نکالنے میں زیادہ کامیابی ہے. اگر آپ بولیں کہ جمہوری ملک، مثال دیتا ہوں چھوٹی سے، 1965 سے لے کر کے 70 تک ہندوستان میں جن سنگھ، جس کو آج بی جے پی نام دیا جاتا ہے، صرف ایک سیٹ ہوتی تھی اٹل بہاری واجپئی کی. لکھنؤ سے جیتتے تھے، ایک سیٹ ہوتی تھی. اس 1975 سے چلا ہوا سفر اور آ کر کے 300 کے اوپر جا کر کے ٹھہرا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھا کانگریس کرپٹ ہے اور وہ محنت کرتے رہے، جمہوری انداز میں محنت کرتے رہے، اور جمہوری انداز میں محنت کر کے انہوں نے دنیا کو دکھلایا کہ جمہوریت کا کرپشن جمہوریت کے ذریعے حل ہوتا ہے. اور آپ پوری ہسٹری پڑھیں ان کی، جب بی جے پی کی پوری ہسٹری پڑھیں، کیونکہ ہم جس عمر سے، جب ہماری پیدائش ہے اس کے بعد ہی بی جے پی کی پیدائش ہے. چاہے جن سنگھ نام رہا ہو، چاہے جنتا پارٹی نام رہا ہو، چاہے بی جے پی نام رہا ہو، چاہے جو کچھ بھی نام رہا ہو، وہ ساری اسٹڈی سامنے ہے. اور وہاں سے یہاں تک کا ان کا 2014 تک کا سفر جو ہے وہ جمہوری انداز میں انہوں نے کانگریس کو ڈیفیٹ دیا. اس کا کرپشن کو کریکٹ کرنے کے لیے جمہوریت، تشدد جمہوریت میں کبھی مسئلے کا حل نہیں ہے. ایران کا انقلاب آیا، تشدد کے ذریعے آیا کیونکہ بادشاہت کو ختم کرنا تھا. فرانس کا انقلاب آیا، وہاں پہ غلامی رکھی گئی، وہاں پہ تشدد نے مسئلے کو حل کیا، پاور نے مسئلے کو حل کیا. لہذا ہندوستان میں بھی جو انگریزوں کے خلاف لگائی گئی بات، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی تھی. بہرحال انگریزوں نے جو کاروائیاں شروع کی وہ 3 طریقے کی تھی. اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ، جب دلی کا معاملہ خراب ہو گیا اور بے شمار لوگوں کو پھانسیاں ہوں گی، تو پورے ہندوستان میں خوف و ہراس کا پیدا ہو گئی بات. وہ تو یہی مقصد ہوتا ہے کہ پریشرائز کر دیا جائے کہ لوگ اس قسم کے اٹھے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ مسلمان کو اور علماء حق کو انہوں نے اتنی طاقت دی تھی کہ یہ ساری ان کی قید و بند اور ان کی پھانسیاں جو ہے نا، ان کو بات حق کرنے سے روک نہیں سکی. اب انہوں نے یہ سوچا کہ اب کیا کیا جائے اور معاملے کو اب کیسے سمجھانے کی کوشش کی جائے. تو اب آپ کو بتا رہا ہوں 3 طرح کی ان کی جو ہے وہ دبش ہوئی. دبش سمجھتے ہیں؟ دبش کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس اچانک چھاپا مارنا اور 3 چیزوں کی تحقیق کہ ان کو اسلحہ کہاں سے آتا ہے، نمبر 1. اور آج بھی جو ان کے مرکز قائم ہیں ان کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، نمبر 2. اور نمبر 3 یہ کہاں ان کے مراکز ہیں جہاں سے یہ معاملہ بن رہا ہے. زبردست قسم کی چیکنگ شروع ہوئی. اب اس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا وہ آج بھی سرحد کا ہی معاملہ تھا. تو وہاں پر ایک عبداللہ شخص تھے، مسجد میں رہتے تھے، جو پوری کمانڈ کرتے تھے. اب بڑی سیکرٹ انداز میں، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کوئی بھی ایسی ایجوکیشن نہیں حاصل کی تھی، لیکن انگریز جیسی قوم کو انہوں نے نچا کے مارا تھا کہ ایسے ان کے اڈے، جب تک ہمارے لوگوں نے ان کے ساتھ شرارت نہیں کی، انگریز پہنچ نہیں سکے مرکز تک. جب پہنچے انگریز کسی مرکز پہ تو ہمارے مسلمانوں کی یا ہمارے ہندوستانی لوگوں کی شرارت اور مخبری سے ہی پہنچ پائے. اپنی نالج اور اپنا CID ڈپارٹمنٹ ان کے آگے پھیلتا ہے، اتنی سیکرٹ کے کام ہو رہا تھا. تو ایک CID کا لڑکا، اس کو مسلمان بنایا گیا. مسلمان بنا کر کے وہ عبداللہ صاحب کے بارے میں تھا ڈاؤٹ کہ مسجد میں رہتے ہیں اور یہیں سے معاملہ یہ ڈیل کرتے رہتے ہیں سرحد کے علاقے میں. یہ بندہ پہنچا اور اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار ثابت کیا. وہ لڑکے نے کچھ دن 2-3 سال تک، اور یہ ان کا ایک پارٹ بن گیا. حالانکہ غیر مسلم تھا، یہ ان کا پارٹ بنا. اور پارٹ بننے کے بعد اس وقت اتفاق سے یہ جو کیا کہتے ہیں اسلحہ جو ہے کی بات ہو رہی تھی کہ فلاں جگہ سے اس کو سپلائی کرنا ہے. یہ بندے نے ساری رپورٹنگ لی کہ مرکز ان کا کہاں ہے، کہاں کہاں ہوتا ہے، اور اس نے جا کر کے جو ہے نا وہ رپورٹنگ کر دی. اس کے جو مین سپلائر تھے مولانا محمد جعفر صاحب تھانی سری رحمۃ اللہ علیہ تھے. وہ مالی فراہمی بھی کرتے تھے، اسلحہ بھی دیتے تھے، اور مجاہدین کو بھی سپلائی کرتے تھے. جب ان کے بارے میں معلوم ہوا CID ڈپارٹمنٹ کو کہ اصل بندہ یہ ہے، لہٰذا 1863 میں ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا.
उस वक्त भी अंग्रेज जो थे वो अदालतों में ये बात राय थे, अदालतें तो बहुत ज्यादा शरारत करती थी, लेकिन उस ऐसे हालात में भी अरेस्ट करने के लिए जब तक अदालत से वारंट नहीं होता था तब तक अरेस्ट नहीं कर सकते थे। तो मौलाना मोहम्मद जाफर के घर पे जब छापा मारा तो मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अगर आपने मेरे घर पे, क्योंकि ये जो घर में छापा मारा जाता है ये पुलिस को अख्तियार नहीं होता बगैर कोर्ट की परमिशन के, ये तो हमको मालूम नहीं है। आपको रोड पे चलते हुए भले वो अरेस्ट कर ले, लेकिन घर के दरवाजे को नोक करके घर में दाखिल होने के लिए उनके पास क्या है, स्पेशल वारंट, और वो वारंट पुलिस को अख्तियार नहीं होता, जज को अख्तियार। आज भी हिंदुस्तान का यही कानून है कि घर से किसी को उठाया नहीं जा सकता जब तक कि कोर्ट से परमिशन नहीं हो। बहरहाल उन्होंने पूछा वो कोर्ट का परमिशन कहाँ है, कोर्ट का परमिशन नहीं था। तो बहरहाल ये तो घुस तो गए थे घर में, इत्तेफाक से इनके टेबल पर एक खत रखा हुआ था और उसमें जो है फलां साहब से अपील की गई थी कि इतनी 1000 अशरफियां आप भेजे मुजाहिदीन के लिए और हमको इस वक्त तक जरूरत है। वो खत इनके हाथ तक गया, लेकिन वारंट नहीं था, लिहाजा ये उनको अरेस्ट नहीं कर सके। वहां पे दूसरे 2 लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया और लेकर के अंबाला चले गए। मौलाना सुबह होते ही ये हुआ कि पहले जाकर के अदालत शुरू होगी, तो अदालत 10 बजे खुलेगी, वहां से कोर्ट से परमिशन लिया जाएगा। उससे पहले मौलाना जाफर साहब वहां से निकल करके अलीगढ़ चले गए। ये बात चूंकि वारंट तो इनका नाम निकल गया दूसरे दिन 10 बजे, और उसके बाद यहाँ से वो अलीगढ़ वारंट गया। बहरहाल अलीगढ़ में मौलाना अरेस्ट हो गए। मौलाना को जब इन्होंने अरेस्ट किया तो उसके बाद मोहम्मद शफी ठेकेदार भी अरेस्ट हुए, और अरेस्ट होने के बाद मौलाना को लेकर के आए अंबाला। अंबाला में जो है वो मुकदमा चला। अंबाला में जो मुकदमा चला तो इसमें जो है 13 या 14 आदमी के खिलाफ जो है वो जुर्म साबित किया गया। 200 कुछ गवाह लगाए गए, सब टोटल जाली गवाह थे, जैसे आज लगाए जाते हैं, गवाहों के नाम ही नाम, गवाहों के नाम ही नाम। बहरहाल उन गवाहों की बुनियाद पर उन 14 आदमियों को क्या कर दिया गया, जज ने, जो जज था उसका नाम था हर्बर्ट, ये 2 मई 1864 की बात है, उसने फैसला सुनाया। फैसला क्या सुनाया कि मोहम्मद शफी ठेकेदार को सजाए मौत दी जाती है, और जितनी, ये सारे के सारे बड़े मालदार लोग हैं, और सजाए मौत के साथ साथ जितनी भी इनके नाम पे प्रॉपर्टी है सब जब्त की जाती है। उसके बाद मौलाना मोहम्मद याहया साहब भी इसी केस में पकड़े गए, इनको भी सजाए मौत और सारी की सारी जायदाद जब्त। मौलाना मोहम्मद जाफर साहब को सजाए मौत और सारी की सारी जायदाद जब्त। मौलाना अब्दुल रहीम साहब अजीम आबादी, इनका हुक्म हुआ कि इनको काला पानी दिया जाए और सारी जायदाद जब्त की जाए। काजी मियां खान साहब, इनको भी अरेस्ट किया गया और इनको भी काले पानी की सजा और जायदाद जब्त। मियां अब्दुल गफ्फार साहब, जिन लोगों पर मुकदमा हुआ बता, इसमें कोई भी सीताराम और जॉन नहीं है, ये अंबाला केस कहलाता है। इस अंबाला केस में 14 के 14 लोगों पे जुर्म साबित किया गया है। सारे के सारे जो है ना, आप नाम सुन लीजिए, मियां अब्दुल गफ्फार है, इनकी फाइलें आज भी मौजूद हैं, इनके केस के नंबर और फाइलें आज भी मौजूद हैं। मियां अब्दुल गफ्फार साहब, इनको जो है भी, इनको भी काला पानी सजाए मौत से बुरी सजा थी। हम उसका एक मंजर खींचेंगे आपको कि काला पानी में होता क्या था। मुंशी अब्दुल करीम साहब, काला पानी जब्त जायदाद। अब्दुल गफूर शाहबादी, जब्त जायदाद काला पानी। इलाही बख्श, जब्त जायदाद और काला पानी। मौलाना हुसैनी अदीम आबादी, बहुत बुलंद पाए के आलिम थे, इनको भी जो है वो काला पानी और सारी जायदाद जब्त। मौलाना हुसैनी दूसरे एक है थानीश्री, ये इनको भी जो है काला पानी और सारी जायदाद जब्त। ये जब सजा सुनाई, जिस बंदे ने सुनाई थी, उसका नाम जो है वो जज का जो नाम आपको बताया, तो यहां से एक और केस है, उतना कैसे बताते हैं। एक तो यहाँ ये पहला केस चला, कहाँ, ये अंबाला केस कहलाता है। आज भी अंबाला केस के नाम पर अगर आप नेट पे भी डालेंगे ना तो ये सारी चीजें आएंगी। दूसरा मामला हुआ अजीमाबाद। अजीमाबाद का मुकदमा हुआ, क्योंकि अब छापा तो चल ही रहा था। इन्हीं लोगों से जो मौलाना जाफर साहब पकड़े गए थे, इनको उन्होंने इतना मारा कि इनको बताना पड़ गया कि हमारा दूसरा मरकज अजीमाबाद है। अजीमाबाद में छापा डाला गया। मौलाना अहमदुल्लाह साहब बहुत बड़े रईस आदमी थे, इनके ऊपर मुकदमा चला। मुकदमा चलने के बाद इनको फांसी की सजा सुना दी। इन्होंने फांसी की सजा को अपील किया आगे। अपील करने के बाद जज ने क्या किया कि फांसी की सजा हटा करके काले पानी में क्या कर दिया, तब्दील कर दिया,
اور یہ उस वक्त के अरबपति थे मौलाना। इनकी सारी जायदाद जो है क्या कर दी गई, जब्त कर ली गई। इतना जब्त कर ली गई कि इनके लड़कों के लिए खाने के डाले पड़ गए, क्योंकि सारी जायदाद इनके नाम थी, जो जी इनके नाम थी सारी की सारी जायदाद को जब्त कर लिया। और जब्त करने के बाद जो है बेचारे जो है पूरा खानदान जो है वो तीन पाचा हो गया। मौलाना मुबारक अली साहब जब ये पकड़ गए तो ये मरकज कमजोर हो गया। मौलाना मुबारक अली साहब बड़े हिम्मत वाले आदमी थे, उनको पता चला कि अजीमाबाद का मरकज जो है वो ढिल गया। इन्होंने बिहार से हिजरत की मौलाना ने, और आकर के अजीमाबाद के मरकज को क्या कर लिया, ठीक कमान। आप अंदाजा करें ऐसे हालात में तो जो वहां रहेगा वही भाग जाएगा। ये जाए कि दूसरी जगह से वो हिम्मत करके आकर के क्या कर रहा है कि वो उस स्टेशन को दोबारा जिंदा करने के लिए नहीं, क्योंकि ये वो जगह है कि जहां पर लोग तैयार होते थे। बहरहाल मौलाना मुबारक अली साहब वहां से आए और आने के बाद जो है इन्होंने दोबारा उस मरकज को संभाला। इसी तरीके से 1871 में एक जज था, उसका था नॉर्मन, इसने सजा सुनाई अजीमाबाद केस में। तो अहमदुल्ला साहब को सजा सुनाई फांसी की, और मौलाना मुबारक अली साहब को भी सजा सुनाई। जब इसने सजा सुनाई ना मुबारक अली साहब, इसमें और भी 4-5 लोग थे। अमीनुद्दीन साहब बहुत मशहूर आदमी हैं, और हाजी दीन मोहम्मद साहब हैं। ये तकरीबन 5 आदमी थे, इनके 5 के 5 को काला पानी की सजा सुनाई गई। जब ये सजा सुनाई गई तो उस अदालत में सजा के जब जजमेंट सुनाया जा रहा था ना, तो जैसे यहाँ पर मीडिया वगैरह को इजाजत दी जाती है, तो उनके यहाँ अदालत थी कि पब्लिक भी अगर सुनना चाहे तो आ सकती है। उनका तो मकसद था कि प्रेशराइज हो पब्लिक के सामने जब इतना है सजाए मौत, तो लोग जो अगर हो तो अंदर से बैठ जाएं। तो उसमें अब्दुल्ला पंजाबी नाम का एक लड़का था, जैसे ही जज ने सजा सुनाई उसने उसी वक्त जज के ऊपर वार कर दिया, और ऐसा जबरदस्त उसने वार किया, हालांकि सिक्योरिटी जबरदस्त थी, सजाए मौत के मुजरिम हैं, उनके सामने सिक्योरिटी होने के बावजूद ये जब वहां से कूदा अब्दुल्ला पंजाबी ना, तो जज जो अपनी कुर्सी पर बैठा था वहां से निकल कर उसने डायरेक्ट वार किया जज के ऊपर। ये जज जो था, क्योंकि इसको तकलीफ हुई कि हमारे इतने बड़े बड़े उलमा को इसने सजा सुनाई है, लिहाजा उसने वार कर दिया। इसी वार में क्या हो गया, वो बंदा उसके फौरन नहीं मरा, कुछ दिन के बाद वो जज का इंतकाल हो गया। अब उसके बाद उस केस में अब्दुल्ला को फांसी हो गई, अब्दुल्ला को फांसी की सजा सुनाई गई। और ये जो 3 आदमी को मैंने अभी फांसी की सजा सुनाई, इनके लिए ये था कि इनकी बॉडी को इनके हवाले नहीं किया जाए। खतरा ये था कि अगर इनकी बॉडी चली जाएगी ना तो ये क्या हो जाएंगे, शहीद हैं, अपने आप को कहते ही शहीद हैं, तो लोग इनकी मज़ारों को मेला लगाने लगेंगे। लिहाजा इनकी कब्र की सारी, इन तीनों आदमियों को जो पहले अभी आपको सुनाया, तीनों की कब्र के लिए लाजिम हुआ कि जेल के अंदर ही इनकी कब्र बनाई जाए और बाहर जाने का की इजाजत नहीं दी गई। ये अब्दुल्ला को जो है फांसी हुई, इसकी फांसी में भी था कि अब्दुल्ला को भी जो है ना वो बाहर दफनाया नहीं जाएगा। अब्दुल्ला की फांसी की इत्तला अंडमान निकोबार पहुंची। ये अंडमान निकोबार क्या है, कलकत्ता से तकरीबन 600 कुछ माइल पर ये छोटा सा टापू है। इसके छोटे छोटे 1000 जो है वो क्या है, टापू है। छोटा है मतलब किसी में 5 एकड़ है, किसी में 10 एकड़ है, ऐसे छोटी छोटी आबादियां हैं। तो वहां पर जब एक इत्तला पहुंची कि अब्दुल्ला ने वार किया और अब्दुल्ला को फांसी की सजा हो गई, तो एक बड़ा बहादुर था, उसका नाम है बहादुर शेर अली। बहादुर शेर अली ने उसी वक्त कसम खाई कि मैं अब्दुल्ला की फांसी क्या बदला जरूर लेकर। कहां कसम खा रहा है, खुद हालत कैद में है, और वो भी काला पानी में है, जहां पर परिंदा पर नहीं मार सकता। बहरहाल इसने कसम खाई। 1872 में इत्तेफाक से वायसराय ने इस पूरी जेल को जो अंडमान निकोबार में बनाई गई थी उसको विजिट करने का प्रोग्राम बनाया। वायसराय बोले तो बहुत बड़ी ऊंची चीज होती थी। इसने तय कर लिया कि ये बेहतरीन मौका वायसराय साहब को मार देने का। अब वहां पे जहां पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी थी, पहले बड़ी टाइट सिक्योरिटी की गई कि वायसराय साहब आ रहे हैं, उनका इंतजाम ये वो जो भी उस वक्त का रहा होगा, Z+ और N+ सिक्योरिटी जितनी भी थी सब लगाई गई। ये जो बंदा था ना, जब इसको मालूम हुआ कि आने वाले हैं, तो 1 साल से तैयारी हो रही थी वायसराय साहब आने वाले हैं। इसने 1 साल में खूब अपना अच्छा कैरेक्टर शो किया कि लोगों को वहां पे सिक्योरिटी जो पुलिस थी उसको ये मालूम है कि बड़ा दीनदार आदमी है, बड़ा अच्छा आदमी है, लोगों को खाना खिलाना, लोगों के साथ बीमार हो जाए तो उसके पास जाना, कोई गैर मतलब मुस्लिम भी या वो उनका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का आदमी था वो कोई बीमार हो जाए उनकी तीमारदारी, ऐसे करके उसने कि बहुत अच्छा अपना जो है ना वो क्रेडिट बना रखा था।
कि जब ये वाइसराय साहब आए ना तो इसके ऊपर इतनी सिक्योरिटी का नज्म नहीं रखा गया। ये सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन इसके बारे में इतना वो नहीं था, ये अपना आते जाते थे, निकल जाते थे। तो वाइसराय साहब एक टापू से दूसरे टापू पे जा रहे थे और बोट लगाई गई थी, उस बोट पर जो है वो चढ़ने जा रहे थे। उतने ही में ये शेर जो था ना, इसका नाम भी शेर था, इस बहादुर शेर ने उड़ा करके वाइसराय के कमर के ऊपर हमला कर दिया चाकू से। अच्छा, जब उसने मारा ना चाकू, जब तक उसको पीछे से लोग पकड़े पड़े तब तक चाकू मार दिया उसने, और मारने के बाद तारीख से मालूम होता है कि एक मरता निकाल के फिर मारा, एक जगह मार दिया था, निकालने के बाद दोबारा फिर मारा। बहरहाल वाइसराय साहब इतना गड़बड़ हो गए कि बोट में बैठने के बजाय पानी में गिर पड़े। अब पानी में जब गिर पड़े तब तक तो हंगामा हो गया। बहरहाल अल्लाह ने ऐसा करना था कि वाइसराय साहब इसी कातिलाना हमले में उनका इंतकाल हो गया। फिर शेर अली साहब को ही फांसी हो गई। ये ऐसे ऐसे हमारे नौजवान रहे मुस्लिम, जिन्होंने अंग्रेजों को बताया कि हिम्मत और ताकत तुम्हारी जंजीरों से और तुम्हारे जो है वो इस किस्म की सजाओं से हम डरने वाले नहीं हैं। बहरहाल अब अकाबिर देवबंद क्या करते रहे, ये तो मामला दो केस का हो गया, अजीमाबाद का और क्या कहते हैं अम्बाला जेल का। मैं कह रहा था ये उलमा देवबंद की थोड़ी सी बात करके 10 मिनट आज ज्यादा हो जाएगी, गुफ्तगू को कंप्लीट करते हैं। अकाबिर देवबंद जो बचे हुए थे, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह खासकर, और इसी दरमियान में कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द तैयार हो गए जिनका नाम है शेखुल हिंद, टाइटल उनका शेखुल हिंद है, महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह। तो इन लोगों ने मीटिंगें की कि अब अगला कदम क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को एक मीटिंग पार्लियामेंट की लीक की। पार्लियामेंट में ब्रिटिश लंदन में मीटिंग हुई और मीटिंग में कहा गया कि अब हिंदुस्तान पर कंप्लीट हमारा कब्जा है। तो लोगों ने मेदे थपथपा करके जो है पार्लियामेंट में उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि अब डरने की कोई बात नहीं, इक़्तिदार की चाबी हमारे हाथ में है। लेकिन इसमें जितना भी रुकावट इस 350 साल में हुआ, 1600 में आए हैं याद रखें, और 1947 में आजाद हुआ है, इसमें 1857 से लेकर 1900 तक उनको जितनी भी प्रॉब्लम आती रही वो सारी की सारी मुसलमान से और खासकर उलमा से आती रही। तो उन लोगों ने ये बात तय की कि अब ऐसा करें कि इनका जो दीन है, इनके दीन पर मेहनत करनी चाहिए और इनको क्रिश्चियन बनाना चाहिए। ये बात हजरत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को पार्लियामेंट की बात लीक की। हजरत ने मीटिंग की, हजरत ने कहा कि इक़्तिदार गया है लेकिन दीन कतई नहीं जाने देंगे। और उस दिन यह तय किया गया कि हिंदुस्तान में मदरसे के जाल बिछा दिए जाएंगे, और अल्लाह के फजल से मौलाना का वो निकला हुआ जुमला, हिंदुस्तान में मदरसे के जाल बिछ गए। आपको मालूम है हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हैं, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मदरसे हैं इस वक्त यहाँ, और जाल बिछा दिया हजरत ने। उसकी सबसे पहली बुनियाद हजरत ने डाली 1866 में मई के महीने में दारुल उलूम देवबंद की। पैसे की इतनी शॉर्टेज थी, पैसे तो सब जा रहे थे मुजाहिदीन को, पैसे की इतनी शॉर्टेज थी कि जिस तालिब इल्म से बिस्मिल्लाह शुरू किया गया उसके बैठने के लिए छत भी नहीं था, एक अनार का दरख्त था, उसके नीचे बैठकर हजरत ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू किया। लेकिन उस बिस्मिल्लाह में और उसमें इतना खुलूस था कि आप उसका नतीजा आप देख रहे हैं, जितने मदारिस हैं चाहे रियाजुल उलूम हो और चाहे हिंदुस्तान के जितने मत, सब उसी कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश और दुआओं का सदका है। वरना कहाँ हुबली और कहाँ दारुल उलूम। कारी तैयब अलैह रहमत जैसा आदमी जो है वो उसने आकर के इस रियाजुल उलूम के बारे में राय दिया कि इसको जो है मदरसा यहाँ बनाना चाहिए। वाइस चांसलर दारुल उलूम देवबंद, आप कभी पीछे वहां बोर्ड लगा कभी देख लीजिएगा, 1953 में कारी तैयब साहब यहाँ से गुजरे हैं और भटकल जा रहे थे जिस वक्त। बहरहाल तो दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली गई। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद का मकसद एक तो यह था उलमा को पैदा करना, और दूसरा ऐसा है कि इसी प्लेटफॉर्म के जरिए मुजाहिदीन को भी लाना। तो इन्होंने क्या किया कि शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने शेखुल 1879 में एक अंजुमन बनाई जिसका नाम था समरतुत तरबिया, यानी तरबियत करने की। इसमें जो लोगों को ला करके रखा जाता था उसमें तालीम दीन के साथ साथ ये था कि यहाँ इतना पढ़ें, इतना काबिल हो कि जिस इलाके में जाए मदरसा चला सकें। और ये जमाने तक ऐसा दारुल उलूम में अल्हम्दुलिल्लाह होता रहा कि फारिगीन इस सलाहियत के पैदा होते रहे
कि पूरी पूरी बैच जो है वो पूरी एक एक आदमी एक एक उम्मत, ऐसे ऐसे लोग पैदा होते। आज तो खैर वो कैफियत नहीं है, लेकिन एक जमाने तक ऐसा होता रहा कि जो बैच तैयार होता था वो जहां जिस इलाके में जाता था अकेला क्या करता था, कोहराम बरसा कर देता था। तो इस तरबियत के जरिए जो लोग इसमें शामिल हुए, मैं उनका नाम जानबूझकर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मौलाना अहमद हसन साहब अमरोही रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे इस तरबियत के कैंप में थे। मौलाना फखरुल हसन गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल हक, मौलवी मोहम्मद फाजिल साहब फुलकी, ये फुलक एक जगह है मुजफ्फरपुर में, बड़ी जरखेज जगह है बुजुर्गों की। एक जगह है खितौली मुजफ्फरनगर में। खितौली नाम बिगड़ा हुआ है। खितौली असल जो पुराना नाम है खित्ते वली, वलियों का एरिया, वो बिगड़कर आज क्या हो गया है, खितौली हो गया है। और ये फुलक शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का गांव है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपको पूरा खानदान बताया था। ये सारे के सारे शाह साहब का तो इतना बड़ा एहसान है हिंदुस्तान पर कि हिंदुस्तान के सारे लोग कभी जितने भी हमारे उलमा हैं, देवबंद के हों बरेली के हों, सबकी सनद जा करके शाह वलीउल्लाह पे टकराती है। आज भी जितने फारिग होते हैं, अगर हम 7वीं या 8वीं नस्ल पर जब जाते हैं, चैनल बयान करेंगे, जो हमको लिख के दिया जाता है कि हमने आपको पढ़ाया, हमने किससे पढ़ा, सबकी चाहे वो देवबंदी हो चाहे बरेली हो, सबको जाकर के शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पे सबकी सनद टकराती है शाह साहब पर। शाह साहब का ये गांव है फुलक। मौलाना मोहम्मद मीर सादिक साहब मद्रासी, मौलवी अब्दुल कादिर साहब देवबंदी, मौलवी फतेह मोहम्मद साहब थानवी, मौलाना अब्दुल्ला साहब अम्बेडवी, मौलाना मोहम्मद मुराद साहब साकिन पाकपटन, मौलाना अब्दुल्ला साहब ग्वालपट्टी, मौलाना अब्दुल अली साहब मेरठी, मौलाना निहाल अहमद साहब देवबंदी, मौलाना अब्दुल लतीफ साहब तैसपुरी। आज आप समझते हैं कि मौलाना 2 पढ़ी के लोग हैं। इसमें देखिए मिस्टर कोई नहीं है, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब का कहीं पता नहीं है यहाँ पर, समझे। ये वो उलमाए कराम है। मौलाना अब्दुल्ला साहब जलालाबादी, मौलवी मोहम्मद आला साहब अम्बेडवी, मौलवी अब्दुल अदल साहब फुलकी, मौलाना कौसर साहब नगीनवी, मौलाना करामतुल्लाह साहब देलवी, ये वो लोग थे जो इस अंजुमन के बेसिक तौर पर क्या थे, मेंबर थे। और यहीं से जो है वो तरबियत होती थी। कुछ दिन के बाद शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को खतरा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस अंजुमन की चपेट में दारुलूम आ जाए। लिहाजा 2 साल के बाद, किसी उसके थोड़े दिन के बाद कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल। कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह बहुत कम उम्र था, तो कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह जब इंतकाल हुआ ना, तो इस अंजुमन का नाम बदल कर बल्कि अंजुमन को पैक कर दिया गया, और उसके बाद दूसरे नाम से जो है वो अंजुमन कायम कर दी गई। और इसी दरमियान में एक बहुत फाल शख्स मिल गए, मौलाना उबैदुल्लाह साहब सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बहुत मुतासिर थे। लिहाजा उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने आकर के इसी बागडोर संभाली और फिर दूसरी तंजीम बनाएगी जिसका नाम रखा गया जमीयतुल अंसार। ये जानबूझ करके चेंज हो रहा है मामला कि कहीं ऐसा ना हो, और फिर जमीयतुल अंसार का हेड क्वार्टर देवबंद से हटा करके दिल्ली बना दिया गया। और जमीयतुल अंसार इतनी मुताबिक थी कि इसने अपना सबसे पहला दारुल जब 1911 में 1866 में कायम हुआ, 1911 में जब पहली मरतबा उसने दस्तारबंदी की है, तो आप अंदाजा है कि उलमाए देवबंद से इतना लोग मुतासिर हो चुके थे। उस वक्त कोई कम्युनिकेशन का जरिया नहीं था। पहले जलसे में 30,000 लोग शरीक हुए, और उस वक्त 30,000 एक बहुत बड़ा मजमा था, आबादी भी कम, कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं। और दारुल के खिलाफ, यानी उस देवबंद मदरसे के खिलाफ अंग्रेज की पूरी मीडिया लगी हुई थी कि किसी तरह इसमें लोग नहीं आना। उसके बावजूद 30,000 लोगों ने शिरकत करके अपनी वफादारी का ऐलान किया कि हम लोग दारुल देवबंद के साथ हैं। उसके बाद जमीयतुल अंसार का जलसा 1911 में मुरादाबाद में हुआ, 1912 में मेरठ में हुआ, और 1913 में शिमला में हुआ। इस तरीके से ये दूसरी तरफ कार्रवाई शुरू की गई। ठहरा एक दिन नहीं गया। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल हम बात करेंगे शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की उस तहरीक की जिसको लोग रेशमी रुमाल की तहरीक करते हैं, कहते हैं कि वो रेशमी रुमाल की तहरीक क्या है। और कोशिश ये करेंगे कल हम आपको कि कुछ चीज़ा उलमा जो 1857 से लेकर के 1911 तक जो आप दोनों बात की, इस दरमियान में कौन से वो उलमा थे जिनको सजाएं दी गई, और एक नाम लिस्ट आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी ईमान वाला बनाए, और हम लोगों के अंदर भी इस किस्म की बुज़दिली के बजाय हिम्मत वाला इंसान बनाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।